السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اور عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آخر کیوں۔ ناظرین، اس وقت ہم پل برارہ پر موجود ہیں۔ آپ یہاں کے مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے یہاں پر بہت زیادہ مسائل جنم لے رہے ہیں، اور ٹریفک جام کی وجہ اگر ہم آپ کو بتائیں تو یہ روڈ ہے اور ساتھ ہی ساتھ تجاوزات ہیں، اور یہاں پر مارکیٹس کو اور کون سے ایسے مسائل ہیں جو یہاں پر تاجروں کو اور تاجروں کا کاروبار افیکٹ کر رہے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ مسائل تو بڑھ رہے ہیں اور انتظامیہ کی کارکردگی جو ہے وہ کیا ہے، اور انتظامیہ خاموش تماشائی دکھائی دے رہی ہے ہمیں یہاں پر آخر کیوں۔ ناظرین، اب مسائل کے حوالے سے جس طرح سے بات کر رہے ہیں، یہاں پر جو ہے ہمارے ساتھ شہری بھی موجود ہیں مسائل کو لے کر، مسائل کے حوالے سے بات کرنے سے۔ بھجن کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اچھا، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ یہ بتائیے گا پل برارہ کے اگر مسائل کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر جو ہے جس طرح سے سامنے روڈ سارا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، چوک مین چوک پر اتنے بڑے مسائل ہیں، سیوریج کے مسائل ہیں، کتنا پریشان ہے؟ یہ سر بہت پریشان ہے۔ ابھی یہ آپ کیا ادھر 1.5 سال پہلے یہ روڈ دوبارہ بنا ہے ٹوٹ کر، انہوں نے جی روڈ ڈبل یہ اس کے لیے اجازت لی تھی، انہوں نے اس کو اس روڈ کو توڑ کر اسی کے یہ بنا دیا انہوں نے۔ پھر اس کے بعد سیوریج، اس کے بعد دوبارہ سیوریج والے آ جاتے ہیں، وہ ڈیلی پانی یہ گٹر کھول دیتے ہیں، وہ کھول دیتے ہیں، ڈیلی یہی مسائل ہیں سب کو۔ اور اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں سیوریج کے مسائل جس طرح سے آپ کو درپیش رہتے ہیں، تو یہاں پر سترہ پنجاب پروگرام جو پنجاب میں شروع ہوا، کیا اس سے یہ علاقہ مستفید ہو سکتا ہے؟ میرے خیال سے تو نہیں ہوا ابھی تک تو۔ ٹھیک ہے، نہیں، یہاں پہ آپ آگے تک چلے جائیں، یہاں جہاں سے مرضی، یہ روڈ ایسی آگے بھی اس سے زیادہ ٹوٹا پڑا ہے، آگے وہاں پر زیادہ، اس سے زیادہ یہاں تو پھر بھی کچھ صاف ہے، آگے تو اس سے زیادہ خراب ہے روڈ۔ ٹھیک ہے، اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں جو مسائل آپ کو یہاں پر درپیش ہیں، تو انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہوگا، اور کیا سمجھتے ہیں کہ انتظامیہ کوئی متحرک ہے یہاں پر، یا پھر بالکل کوئی مسائل حل نہیں ہے؟ کیا کہیں، اب ان کو بھی پتہ ہے سر، اب وہ آئے ہیں، اب ان کا حق بنتا ہے یار، جہاں جہاں روڈ خراب ہے، جو بھی کچھ تھا وہ پہلے دیکھتے، بعد میں سیوریج والے آ کے روڈ دوبارہ خراب کر دیتے ہیں، ان کو وہ کہتے ہیں جی ہمارا کام نہیں ہے، ان کو وہ کہتے ہیں ہمارا کام نہیں ہے، یہ کوئی اپنے پہ ذمہ داری لیتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے پہ کوئی ذمہ داری نہیں لیتا۔ مطالبہ کیا کریں گے وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اس سترہ پنجاب پروگرام کو لے کر، جو اربوں روپے کا یہ پروگرام شروع ہوا اور آپ مستفید بھی نہ ہو سکے، اداروں کی کارکردگی پر بھی سوال نشان ہے، اس حوالے سے آپ کو وزیر اعلیٰ مریم نواز سے کیا مطلب؟ اس پروگرام میں تھوڑی سی سختی کی جائے نا ان کے خلاف، آپ ان کو تھوڑا سا سخت کریں گے، ان کو تھوڑی سی آپ ان پہ سختیاں کریں گے، آپ اس پہ تھوڑا سا لاگو ہوگا، وہ اگلے اپنے کام پہ کریں گے، آتے ہی نہیں اس طرح تو وہ جو ہے اداروں پر کی جائے۔ اور اس صورتحال میں جو ہے یہاں پر مسائل کے حوالے سے جس طرح سے بات کر رہے ہیں، مزید بھی ہمارے ساتھ یہاں پر جو ہے علاقہ مکین موجود ہیں۔ بھائی جان کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ بھائی جان، ٹھیک ہے۔ آپ دعائیں یہ بتائیں کاروبار کیسا چل رہا ہے ان مسائل کو لے کر؟ بہت ہی لو ہے کاروبار سر، یہ سڑک دیکھیں یہ بھی بہت طرح بری ہے، اور اوپر سے پولیس والے بہت تنگ کر رہے ہیں، یہ بھی کاروبار لاک ڈاؤن تو پتہ نہیں کہتے ہیں ختم ہو گیا یا نہیں ہوا، یہ تو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن وہ بہت تنگ کر رہے ہیں، اور اوپر سے یہ سڑکوں کی وجہ سے کاروبار بند ہے۔ یہ دیکھو ایک ہی گاڑی گزرتی ہے تو مطلب کہ سارا روڈ بلاک ہو جاتا ہے، ادھر سارا روڈ ٹوٹا پڑا، کبھی کون سا گٹر اوپر آ جاتا ہے، کبھی کون سا پانی باہر آ جاتا ہے، ہم تو اسی وجہ سے بہت تنگ ہیں، بہت ہی زیادہ تنگ ہیں۔ اداروں کی کارکردگی کیا اس طرح؟ سر ہماری تو گورنمنٹ سے اپیل ہی ہے یہ کہ ہماری مدد کریں، ادھر آئیں وہ دیکھیں اس کو، مطلب کہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے جو کمائیں وہ سڑکوں پہ لگا دیں، یہ تو تھوڑی ہے نا، ہم تو خود بہت غریب ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا ہم مزدوری کرنے آئے ہیں جو سڑکوں پہ لگا دیں، یہ تو بہت بری بات ہے۔ بالکل ایسے۔ اچھا، اس صورتحال میں جس طرح سے مسائل ہم دیکھ رہے ہیں، تو رات کے وقت اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے سے چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں کتنا؟ ہاں جی، بہت زیادہ اب ہر روز ہی کوئی نئی خبر آئی ہوتی ہے، وہاں ڈکیتی ہوگی ہے، وہاں ہوگی ہے، لیکن یہ لائٹوں کی وجہ سے، اگر لائٹیں ہوں، لیمپ لگے ہوں بھی، اچھی لائٹنگ ہو تو یہ کام نہ ہو، مطلب کہ 100 مزدور جاتے ہیں، مطلب رات ٹائم لیٹ نائٹ ڈیوٹی کر کے آتے ہیں، وہ تو بیچارے بہت پریشان ہوتے ہیں، اور اوپر سے جو دھند وغیرہ آ رہی ہے، اس سے تو بہت زیادہ پریشانی ہوگی آگے آنے والے وقت میں، بہت ہی زیادہ ہوگی۔ ہاں جی، تھینک یو۔ اس حوالے سے جو ہے یہاں پر جس طرح سے مسائل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، انکل جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ یہ بتائے گا کہ یہاں پر مسائل جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں، کھانے پینے کا آپ نے اسٹال بھی لگایا ہوا ہے، تو یہاں پر جو ہے اس حوالے سے جس طرح سے مسائل کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو مسائل سیوریج کے جس طرح سے ہی عوام کو بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں۔ ہاں جی، سیوریج کے مسائل کتنا پریشان کر رہے ہیں؟ بہت پریشانی کیا عالم ہے، یہاں جو ہے نا مطلب سویرے کو کوئی انتظام نہیں ہے، اور رات کو کمیٹی والے آتے ہیں، سامان اٹھا کے چلے جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے بھی یہاں کا حالات کیا ہیں۔ دوسرا انتظامیہ جو پولیس والے وہ بہت ذلیل کرتے ہیں، رات کو آ کے، رات کو کاروبار ہوتا ہے تو وہ جناب آ کے ذلیل کرنا، رات کو اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے سے چوری ڈکیتی تو بہت بالکل بہت بات کرتے ہیں، یہاں کھڑے ہو جناب موبائل خیال لیتے ہیں جناب والا، وہ حکمرانوں نے جتنے وعدے کیے ہیں کوئی ایک ابھی تک اس علاقے میں پورا کوئی بھی نہیں، بجلی کے بل اتنے آ رہے ہیں جس کا حساب کوئی نہیں ہے، وہ اتنا برڈن ہے، مطلب 10 یونٹ ہے نا تو 5000 بل ہے، باقی سارے ٹیکس ہیں، مطلب یہ ضلالت کر رہے ہیں یہ۔ بالکل ایسے ہی ہے۔
आपके सवाल से नाज़रीन मसाइल जो हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर पुल बरारा के, और मेन मसला ये सामने बसेस का भी आवाम बता रही है कि जब एक बस गुजरती है तो यहाँ पर जो है, क्योंकि ये अभी आप देख सकते हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी की बस गुजरी और BZU की बस भी यहाँ से गुजरती है, तो रोड बहुत छोटा है, तजावज़ात भी बहुत ज़्यादा है। कमेटी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को भी सवाल से जो है कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अभी आप पीछे देख सकते हैं बस गुजर रही है तो ये सारा रोड अभी सामने वहाँ से ब्लॉक हो जाएगा। और मेन चौक की भी हालत आपके सामने ही है, चौक पर सारा जो है यहाँ पर मसाइल होने की वजह से गंदगी का भी ढेर है, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर जितने भी लोग हैं काफ़ी हद तक परेशान हैं, और इस हवाले से जो है मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है इन मसाइल को जल्द से जल्द हल किया जाए, ताकि जो है यहाँ पर ये मसाइल कम होंगे तो कारोबार कोई बेहतर चलेगा। और कारोबारी सूरत हाल भी आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी हद तक ख़राब तर होती चली जा रही है, और ये सारा सीवरेज का निज़ाम, रोड इशू, ये आवाम को बहुत ज़्यादा मुतासिर भी कर रहे हैं, और आवाम जो है इस हवाले से काफ़ी हद तक परेशान भी दिखाई देती है। और जो है यहाँ पर ताजिर जितने हैं उनका यही मुतालबा है कि पिछले 2 साल से जब से ये सारा रोड टूटा है तब से कारोबार हमारा मुतासिर हो चुका है, और कारोबार मुतासिर होने की वजह से जो है अपनी एक वक्त की रोटी पूरी करना भी और जो है दुकानों का किराया पूरा करना भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। और इस तमाम तर हालात में जो है यहाँ पर क्या क्या मसाइल मज़ीद यहाँ दरपेश हैं शहरियों को, इलाका मकीनों को, उनसे जो है इस हवाले से बात करते हैं। और कुछ दुकानदार हज़रात जो है इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए, इनसे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है, ठीक है, तबीयत से ठीक है आप? शुक्र है मालिक। ये बताइएगा कि यहाँ पर जो है जब से ये रोड टूटा, सीवरेज के मसाइल हुए, कितनी परेशानी है, कारोबार कितना मुतासर? सर जी परेशानी तो है, एक तो गाहक आते हुए तंग होता है इधर, ऊपर से अगर बारिश आ जाए तो फिर गाहक बिल्कुल नहीं आता, ठीक है, आगे समझ। दूसरी बात ये है कि मेरे भैया यहाँ गाहक की खड़े होने की जगह नहीं है, क्योंकि रोड जो फटा हुआ है सारा, यहाँ रेडी वाले आते हैं तो बेचारे वो भी परेशान होते हैं, आगे लोडर वाले भी बड़े परेशान होते हैं। ठीक है, अब गाहक यहाँ रुकता ही नहीं है जब से ये रोड टूटा हुआ है, जब से ये परेशानी है ये हमें। ठीक है। अभी जो है इस हवाले से हम देख रहे हैं कि जितना कारोबार डाउन हो रहा है, हालात उतने ही खराब तर होते हैं। कारोबार इसी की वजह से डाउन हो रहे हैं ना, जब रोड ही मुकम्मल नहीं है, सीवरेज ही मुकम्मल नहीं है, तो फिर गाहक कैसे आएगा मेरा भाई? सुथरा पंजाब प्रोग्राम वज़ीर आला मरियम नवाज ने शुरू किया, गंदगी का ढेर है, इदारे अमला कोई नहीं आ रहा इस तरफ, नहीं यहाँ कोई गंद नहीं उठाने आता मेरा भाई। और रात को स्ट्रीट लाइट्स ना होने से चोरी डकैती भी बहुत ज़्यादा होती है। वो तो ज़ाहिर सी बात है, जब यहाँ पे लाइट लगी हुई थी पहले, वो भी पाड़ के ले गए ये गवर्नमेंट वाले। अब वो खंबा के लिए खड्डा खोदा हुआ है, आज 4 महीने हो गए, वो खड्डा भी नहीं पूरा हुआ, पानी निकल रहा है, और अगला ना खंबा लगा है ना कुछ कैमरा शैमरा। ठीक है, अभी जो है इन सूरत हाल में जो है वज़ीर आला मरियम नवाज से मुतालबा क्या होगा आपका? हम ये कहते हैं कि एक तो ये रोड बने मेरे भाई, एक ये कैमरा बने, जो उनका रोड उन्होंने खुला करना है, ट्रैफिक जाम हो जाती है 2-2 घंटे यहाँ, तो वो रोड खुला करे, पीछे MDA चौक से खुला करते आ रहे हैं, लेकिन वो आगे कर नहीं रहे, आगे चौक खुला। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो है तजावज़ात भी हम जिस तरह से देखते हैं उसकी वजह से भी ट्रैफिक जैम तो बिल्कुल। आखिर बड़ी बड़ी बसें हैं यहाँ पे, तकरीबन 14-15 बसें हैं। ठीक है, ये नवाज शरीफ ग्राउंड की जो बसें हैं ना गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट की, ये फिर 2-2 घंटे ट्रैफिक बंद ही नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है, खुली नहीं होती मेरे भाई। मकामी सियासतदान भी कुछ नहीं कर रहे। कुछ भी नहीं कर रहे मेरे भाई, वो अगले पैसा लेके बैठे हुए सुकून से, ठीक है, वो कोई नहीं लगाते यहाँ पे पैसा पूसा मेरा भाई। बहुत शुक्रिया आपका। इस हवाले से जो है मकामी सियासतदान भी जो है कोई ख़ास काम नहीं कर रहे, और ना ही यहाँ पर जो है मसाइल हल किए जा रहे हैं। और इस सूरत हाल में आप यहाँ पर जो मसाइल देख सकते हैं मेन रोड के, ये सारे मसाइल होने की वजह से आवाम बेहद परेशान है। और मज़ीद भी ताजिर आज़ाद जो है उनसे जानेंगे क्या सूरत हाल है इस वक्त कारोबार की, और इस सूरत हाल में बाकी गलियाँ भी अंदर से सारी ऐसी हैं। ताजिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है, पूरी मार्केट जो है इन मसाइल को लेकर काफ़ी डिस्टर्ब है। यहाँ पुल बरारा के मसाइल हम आपको दिखा रहे हैं, तो जितनी भी यहाँ पर मार्केट है, जितने भी यहाँ लोग हैं बेहद परेशान हैं। कुछ हमारे साथ इलाका मकीन भी मौजूद है बात करने के लिए यहाँ पर। भाईजान क्या हाल है, ठीक है, तबीयत से ठीक है आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखा कि पुल बरारा में अगर हम मसाइल के हवाले से बात करें तो यहाँ सारा रोड टूट फूट का शिकार है, साथ ही साथ जो है सीवरेज के मसाइल हैं, गंदगी के मसाइल हैं। इंतज़ामिया कोई मुतहरिक नहीं, कोई काम नहीं करता भाई, कुछ भी नहीं करते। यहाँ पर और बुनियादी मसाइल में सीवरेज के जिस तरह से हमें मसला दरपेश है, बारिश आ जाए क्या मनाजिर होता है? यहाँ पे सैलाब आ जाता है भाई, बहुत बुरे हालात हैं यहाँ पे। अच्छा खासा पानी, जो नमाजी गुजरता सारा, जो कोई बाइक गुजरती सारी छीटें उसके ऊपर जाती हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर खास मतलब कोई रोड खुला होगा, कुछ भी नहीं होता यहाँ पे, सिर्फ बातें होती हैं और कुछ भी नहीं होता। अभी सुथरा पंजाब प्रोग्राम जब शुरू हुआ तो क्या उससे मुस्तफ़ीद हो सके? नहीं, मैंने तो कभी देखा ही नहीं भाई, कौन। हाँ सर ना किसी भी इदारे नहीं, सब झूठ।
ناظرین مزید بھی اس حوالے سے جو ہے ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں بات کرنے کے لیے. بھائی جان کیا حال ہیں, ٹھیک ہیں؟ اللہ کرم سے ٹھیک ہے. شکر اللہ کا. یہ بتائیے گا پل برارہ کے مسائل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. مین چوک جو ہے سارا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اسٹریٹ لائٹس کا مسئلہ ہے, سیوریج کا مسئلہ ہے. یہ سارے مسئلے جو ہیں یہاں پر کاروبار کو کتنا متاثر کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کتنے مسائل کا آپ لوگوں کو؟ سر کاروبار تو ویسے ختم ہوا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ روڈ بڑا تنگ ہو جاتا ہے, خاص کر جب ویلفیئر کی بسیں آتی ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے بڑا نظام خراب ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور رات کو ٹریفک اتنی جام ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ یہ کاروباری مرکز بنا ہوا ہے. یہ کاروباری مرکز کی وجہ سے سارا نظام درم برم ہوا ہوا ہے. جب تک روڈ کھلا نہیں ہوگا نا یہ نظام سیدھا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. یہاں ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں, لازمی بات ہے, اور روڈ بھی بڑا خراب ہے, اور مٹی دھول یہاں کوئی انتظامیہ آتی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آج دن یہ کہ سرکاری بندے آتے ہیں جرمانے وغیرہ کر کے چلے جاتے ہیں کہ آپ نجائز تجاوز والے, ٹھیک ہے نا, پیچھے کر لیں یا آگے کر لیں, ٹھیک ہے نا. باقی معاملات ویسے کھڑے ہیں. باقی ہر اس کی سہولت یہ چاہیے, جب تک روڈ کھلا نہیں ہوگا نا یہ نظام سیدھا نہیں ہوگا. ابھی اس ساری صورتحال میں جو ہے جس طرح سے سترہ پنجاب پروگرام شروع ہوا, کیا اس پروگرام سے مستفید ہو سکیں آپ؟ نہیں, اس سے کوئی مستفید نہیں ہے. مطلب کوئی مسائل یہاں حل کرنے ادارے اصل کوئی پانی آپ کے سامنے کھڑا ہے, گٹر پوری بند پڑی ہے ساری, نہیں پوری پانی روڈ کے اوپر سارا. بارش آ رہے کیا منظر ہوتا ہے؟ بارش ہوتا ہے یہاں تالاب مچھلی تیاری ہوتی ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے, ہاں, یہاں پر سارا تالاب ہی منظر تالابی منظر پیش کرتا ہے. کوئی انتظامیہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. انتظامیہ آتی ہے صرف نام کے لیے بس, کوئی صفائی ستھرائی کا کام نہیں ہے. رات کے وقت اسٹریٹ لائٹ نہ ہونے سے کیا صورتحال ہے یہاں؟ یہاں تو اپنی لائٹنگ ہم خود چلاتے ہیں, اسٹریٹ لائٹ کوئی نہیں ہے یہاں پر. چوری ڈکیتی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. پرسوں چوتھ کی بات ہے کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو جناب علی آگے اعلیٰ شافی کے پاس مجھے روک لیا انہوں نے. پرسوں آپ کے ساتھ خود ڈکیتی یہ ہوا ہے کیونکہ رات کو جلدی بند ہونے کی وجہ سے ڈکیتی زیادہ بڑھ گئی. اچھا, انتظامیہ کے حوالے سے بات کریں تو انتظامیہ نے سترہ پنجاب پروگرام جو ہے اس پہ اربوں روپے کا جو ٹیکس پنجاب حکومت نے انتظامیہ کو دیا. انتظامیہ کہتی ہے کہ سارا ملتان جو ہے ہم نے سترہ پنجاب کے تحت جو ہے صاف ستھرا بنا دیا. انتظامیہ کی کارکردگی کو آپ کس نظر سے دیکھتے دیکھیں جی, آپ کے پاس تو کیمرہ موجود ہے, آپ یہاں کے مسائل چیک کر سکتے ہیں آگے کہ گلی کے محلوں میں کوڑا پڑا ہوا ہے ویسے کہ ویسے. انتظامیہ آتی ہے صرف وہ ان کے اوپر اتنے اچھے رکشے دے دیے ہیں, انہیں اچھی گاڑیاں دے دی ہیں, بندے ویسے کام کر رہے ہیں. وہ عملہ تصویر بنائے گا موقع پہ, صرف اس کوڑے کی تصویر بنائے گا, باقی نکل جائے گا, باقی اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. آگے چاہے وہ سارا پورا علاقہ برباد ہو جائے, ٹھیک ہے نا. یہ نظام ہے. مطالبہ آخر میں کیا ہوگا آپ؟ آخری مطالبہ یہ کہ مریم نواز صاحب کو چاہیے کہ جناب علی نا وہ کچھ دیکھے ملتان کو اور اس کی کچھ مدد کرے کہ جناب علی جو نظام بہتر ہو. جتنے بھی یہاں پر مسائل ہیں یہ ملتان شہر کے حل ہونے چاہیے. حل ہونے چاہیے, انتظامیہ بھی چاہیے. تاکہ یہ مسائل دکانداروں کا بھی کاروباری سے بہت زیادہ کاروبار تو سارا ختم ہوا بڑا لوگوں کا, ظاہری بات ہے جب گند ہوگا تو پھر کون آئے گا یہاں پر. مجھے لگتا ہے بہت شکریہ آپ کا. اور اس حال سے کچھ مزید بھی جو ہے ہمارے ساتھ شہری حضرات موجود ہیں بات کرنے کے لیے, ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. بھائی جان کیا حال ہیں, ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے آپ. الحمدللہ اللہ کا یہ شکر. بتائیے گا کہ پل برارہ کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو یہاں پر روڈ اور سیوریج کا مسئلہ جو ہے کب سے چلتا آ رہا ہے؟ انتظامیہ اور حکمرانوں کے حوالے سے بات کریں, وعدے دعوے بھی آپ لوگوں کے ساتھ بڑے کیے جاتے ہیں, کوئی عملی طور پر کام کچھ بھی نہیں ہو رہا سر. یہ تقریباً پچھلے 2 سال سے یہی حال ہے. ٹھیک ہے. 2 سال سے دکانداری بھی بڑا متاثر ہو رہی ہے. دکانداری تو ہو ہی نہیں رہی. ٹھیک ہے. اسکول یہ ورکر والے گاڑیاں چلتی ہیں تو روڈ بلاک ہو جاتا ہے, مگر کے بعد آپ آئیں دیکھیں 2 گھنٹے پورا روڈ بلاک رہتا ہے یہاں پہ. نہ کہ وارڈن والے کی ڈیوٹی ہے, نہ کہ روڈ کھلا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جو پہلے روڈ تھا وہ بہتر تھا اس سے, پہلے بہتر تھا. اور وزیر اعظم مریم نواز نے سترہ پنجاب پروگرام شروع کیا. کیا سترہ پنجاب ستھرائی سر آپ کے سامنے آپ چیک کر لیں. بالکل ایسے ادارے جو ہے اس حوالے سے جو ہے کافی حد تک جو ہے یہی کہتے ہیں کہ بھی آپ کے سامنے ہے, اور دکانداروں کو بھی دیکھیں, ان کا یہاں پہ یہ دیکھیں ٹھیک آگے لگائے ہوئے ہیں سامنے, منتلیاں چلتی ہیں, پیسے لیتے ہیں. کارپوریشن کچھ بھی نہیں کرتے, نہیں آتے. وہ صرف اور صرف یہاں سے ریونیو کلیکٹ کرنے آتے ہیں. یہ صرف نام کے ہیں, سارے اپنے اپنے حصے کا پیسہ لے کے سائڈ پر. مزید بھی دکاندار حضرات موجود ہیں. بھائی جان کیا حال ہے, ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا کہ یہاں پر جو مسائل ہم دیکھ رہے ہیں, جتنے بھی یہاں روڈ ایشو ہے, سیوریج ایشو ہے, اسٹریٹ لائٹ ایشو ہے, ان کی وجہ سے کتنے مسائل کا سامنا رہتا ہے؟ اس کی وجہ سے بہت مسائل کا سامنا رہتا ہے. ہر وقت یہاں پر ٹریفک جام رہتی ہے, موٹر سائیکل والے رک جاتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں ایک دوسرے سے ٹکرانے کی وجہ سے. روڈ بنانے والا کوئی نہیں ہے, بارش ہو جائے تو کیچڑ, یہاں پر پانی بہت اونچے تک کھڑا ہو جاتا ہے. دکاندار اپنی دکانوں سے بہت باہر آ کر یہاں پر دکانیں لگائی کھڑے ہیں, جس کی وجہ سے ٹریفک بہت جام رہتی ہے. سے جو ہے کارپوریشن انتظامیہ کوئی خاص اقدامات نہیں کر رہی ادھر آگے. کارپوریشن والے آنے سے پہلے ہی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے, وہ یہاں پر آ رہے ہیں, وہ تھوڑی دیر کے لیے اندر کر لیتے ہیں, پھر جیسے وہ آگے گزر جاتے ہیں پھر باہر آ جاتے ہیں. صبح سے شام تک یہی لگا رہتا ہے یہاں پر. جو ہے جو جتنے بھی یہاں ٹھیلیں ہیں چیزیں ہیں یہ صرف اپنا عارضی طور پر ہٹتی ہیں پھر لگ جاتی ہیں. یہاں پر سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ فون پر بتا دیتے ہیں ان کے ساتھ ہی آنے والے کہ ہم آ رہے ہیں, آپ آگے پیچھے کر لو. اس طریقے کے یہاں پہ لمحات ہیں. ابھی جو ہے سترہ پنجاب پروگرام جو شروع ہوا اس سے عوام یہاں کی مستفید ہو سکتی
सिर्फ लाहौर सुथरा पंजाब से साफ़ हुआ है, मुल्तान में सब कुछ गंदगी वैसे के वैसे है, रोड टूटे हुए हैं, खड्डे हर जगह पे जाम, एक बार रोड टूट जाता है तो वो पड़ा रहता है 3-3 साल, कोई देखने वाला नहीं आकर के यहाँ पर कुछ बना है या नहीं बना अभी तक। मुतालबा क्या होगा आपका? हम यही कहेंगे वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा से कि जल्द से जल्द वो अपने मुल्तान की तरफ भी तवज्जो दें। यहाँ पर भी बहुत वोटर हैं नून लीग के, लेकिन यहाँ पर आवाम के साथ कुछ मुखलिसाना तौर पे काम नहीं हो रहा, इंतज़ामिया बिल्कुल नाकस है। यहाँ पर कोई MNA MP अगर नहीं पूछता आपको कोई मुश्किलात है या नहीं है, मतलब कोई भी आपसे यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं आता है, तो बस वो फर्जी तौर पर हाथ मिलाता है और चला जाता है। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी जिस तरह से मसाइल के हवाले से हम बात कर रहे हैं, मज़ीद कुछ ताजिर हजरात जो हैं इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए, और मसाइल के हवाले से बात करेंगे। भजन क्या हाल है? ठीक है, तबीयत है? ठीक है, शुक्र अल्लाह। ये बताइएगा, आप यहाँ पर पुल बरारा पे मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा मसला आपका चौक पर रोड का है, सीवरेज के मसाइल, रात को स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से जिस तरह से चोरी डकैती हो रही है, इन मसाइल की वजह से कारोबार कितना मुतासिर है? बहुत ज़्यादा मुतासिर है भाईजान। घर जाना पड़ता है रात को 12 बजे से पहले, क्यों कोई अल्लाह ना करे मसला हो सकता है रात को लेट नाइट। ठीक है, और मार्केट में इस तरह के वारदात और जो ये वो तो डेली बेसिस पे हो रही है ना, अल्लाह रहम करे, उसमें तो कमी है नहीं ना। वो बढ़ती चली डेली कोई ना कोई बंदा नई बात सुनने को आती है डेली। और यहाँ पर जिस तरह हम चौक पर बात कर रहे हैं, तो ये जितना भी यहाँ पर डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, तो ये डेवलपमेंट ना होने की वजह से कारोबार पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप देखें ट्रैफिक जाम हो रही है, कोई तरतीब नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, हर वक्त ब्लॉक होता है, स्कूल बसेस आती हैं वो भी फंस जाती हैं, बस ऐसे ही है, निज़ाम ज़िंदगी चल रही है। इदारों को यहाँ पर रिस्पॉन्स या कारकर्दगी को क्या समझते हैं कि कितने हद तक जो इदारे यहाँ पर? भाईजान इदारों को क्या ब्लेम दें, आवाम हमारी खुद ऐसे है बड़ी, आवाम कहती है मैं निकल जाऊँ, वो कहता है मैं निकल जाऊँ, जिसकी वजह से ये सारा निज़ाम ही डिस्टर्ब है। अब देखें तो रोड के ऊपर जितने भी यहाँ तजावज़ात मौजूद हैं, ये भी आप लोगों के कारोबार में बड़ा जो है हर्डल डाल रही होंगी। बस क्या कह सकते हैं। चले, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इस हवाले से जो है मज़ीद भी जो है कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक है, ठीक है, अल्लाह का करम। पुल बरारा के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं। आगे मेन चौक पर रोड टूटा हुआ है, रात को यहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, उसके बाद मार्केट सारी निज़ाम दरम बरम है। कितने परेशान हैं आप यहाँ पर? पुल यहाँ पे लोग बहुत परेशान हैं। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे बहुत मसला होता है, कल दुकानें भी बंद करवा देते हैं जल्दी, ठीक है, और डाले आ जाते हैं पुलिस वाले लोग, कारोबार की वजह रात से को जो ये स्ट्रीट लाइट्स ना होने से चोरी डकैती की वारदातें भी बढ़ती जा रही हैं। जी वो बहुत बढ़ रही हैं। ठीक है, और हम देखते हैं कि यहाँ पर जितना रोड है यहाँ पर सारा टूट फूट का शिकार है। उसके बाद सीवरेज का निज़ाम भी दरम भरम है। बारिश आती है क्या मंजर होता है मार्केट? बारिश आती है यहाँ पे एक हफ्ता 4-5 दिन पानी खड़ा रहता है। 4-5 दिन पानी जमा रहता है। जी है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, हुकूमत से मुतालबा क्या करेंगे मसाइल को लेकर? मसाइल का हाल ये है, रोड सही नहीं बना हुआ, वो मतलब रेड है, बारिश आती है 4-5 दिन पानी खड़ा रहता है, लोग तंग होते हैं, इसी वजह से बहुत मुश्किलात का सामना करते हैं। ठीक है, बहुत मुश्किलात का हमें सामना रहते हैं, और इस हवाले से जो है नाजरीन अवाम जो है यहाँ की मुतालबा कर रही है कि यहाँ पर जो है ये इन मसाइल को फिलफौर हल किया जाए। और इस तमाम तर सूरत हाल में जिस तरह से आप ये मसाइल देख रहे हैं, इन मसाइल को लेकर जो है रात के वक्त चोरी डकैती की वारदातें जो है वो होना भी मामूल बन चुका है। और इस सूरत हाल में जो है नाज़रीन मज़ीद भी जो है लोग उनसे बात करते हैं हमारे साथ। तो नाज़रीन जिस तरह से ये मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो है काफ़ी हद तक मसाइल का सामना है दुकानदार हजरात को। कुछ और दुकानदार हजरात भी सवाल से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। पुल बरारा के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं। रात को स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, रोड पर ट्रैफिक जाम होना मामूल बन चुका है, पीछे रोड सारा टूट फूट का शिकार है, सीवरेज का निज़ाम दरम भरम है। इदारे यहाँ कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे मार्केट के मसाइल हल करने में। कोई नहीं दिलचस्पी दिखा रहा है। यहाँ पे ऐसे रोड बना है, 2 साल हो गए हैं, पहले यहाँ ऐसे पड़ा रहा है, अब ये इसको बनाया है, आधा वहाँ पे ऐसे पड़ा है लोधी चौक पे, आधा वहाँ पे पुल बरारा चौक पे, वो अपना MD चौक पे वो पड़ा है, ऐसे थोड़ा सा बनाया है, ठेकेदार छोड़ के चला गया है, पता नहीं फंड आया है, फंड कहते हैं आया है कि नहीं आया, तो सारा हड़प कर गया। MNA MP कोई आता नहीं है यहाँ पे। मेहरबानी करके ये रोड सही डबल बनाया जाए। ये MP MNA बने हैं, आवाम के लिए बने हैं ना, आवाम का अगर मफाद नहीं है तो फिर क्या होगा। जो मौजूदा अभी सियासतदान है, अगर इनके हवाले से बात करें, जीतने के बाद दोबारा चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि जीतने से पहले इसी चीज़ के ऊपर वादे दावे करके गए होंगे आप? सब वादे करके गए हैं, एक बंदा भी नहीं आया, कोई ना MP आया ना MNA आया। उनको चाहिए आवाम के पता करें कि आवाम कैसे है, मसाइल उनके इतने हैं, सीवरेज का निज़ाम है, वो अपना जो है ना वर्कर स्कूल के सामने
वो पानी के बना हुआ है, पानी का आज तक उसको ताले लगे हैं, पानी उसको चालू भी नहीं किया। उसको चालू करना चाहिए, आवाम के लिए जो पैसा लगा है उसको इस्तेमाल तो करे ना आवाम। कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है? कारोबार तो बिल्कुल मुतासर, कारोबार तो बिल्कुल नहीं है, जीरो की तरह है, ऐसे बैठे हैं सारा दिन। नज़ीर हैं गाहक हजरात के। हाँ ऐसे है भाई। वज़ीर आला मरियम नवाज से सारे मसाइल पर मुतालबा क्या होगा आपका? हमारा यही मुतालबा है, आप वज़ीर आला हैं, मोहतरम हैं, बराए मेहरबानी ये मसाइल मुल्तान के हल करें, हमारे रोड के मसाइल हल करें, ये फ़ंड जो है इसको इस्तेमाल करें, डबल रोड बनाएं, सीवरेज के निज़ाम सही करें, पानी के निज़ाम सही करें, गलियों को साफ़ नहीं करते, आते हैं वो जो पैसे देते हैं वो सफाई करते हैं उनकी, बाकी सफाई नहीं करते, ऐसे गलियाँ छोड़ के चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर जो है प्रॉपर सफाई के निज़ाम को भी बेहतर नहीं बनाया जा सका और इस हवाले से जो है मसाइल ताजरों के, दुकानदारों ज़ात के बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मज़ीद भी ताजरों और दुकानदारों से और आवाम से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आप पुल बरारा के मसाइल के हवाले से जिस तरह से बात करें, एक बहुत बड़ी मार्केट है और यहाँ पर अगर हम देखें तो मुख्तलिफ़ दुकानें मौजूद हैं, हर किस्म का कारोबार जो है यहाँ पर जो है ताजरों के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। लेकिन दुकानें और जो अपने बिहाफ पर जितना भी जो है यहाँ पर ताजर हज़रात जितने होते हैं अपनी तंजीम के थ्रू या अपने आप के, या हम कहें कि जितना भी एफ़र्ट्स खुद लगाकर अपने मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं तो करते हैं, इंतज़ामिया जो है यहाँ पर कोई खातिर का इंतजामात करती दिखाई नहीं देती। तमाम सूरत में मज़ीद मसाइल पर बात करने के लिए नेशनल ताजिर इत्तेहाद के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी दिलदार हुसैन बलूच साहब जो मौजूद हैं हमारे साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, शुक्र जी। ये बताइएगा कि मसाइल पर बात करें पुल बरारा के, तो क्या समझते हैं कि यहाँ पर जो है हम देखते हैं रोड टूट फूट का शिकार है, सीवरेज के मसाइल हैं, इंतज़ामिया की कारकर्दगी को किस नज़र से देखते हैं? पहले तो मैं रोहित का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जब भी कोई अवामी मामला हुआ है इन्होंने बग़ैर किसी जानिबदारी के बिल्कुल अवाम की आवाज़ बने हैं और हर सतह पर और हर फोरम पर जो है नुमाइंदगी की है। इसके अलावा जो आपका एक इशू जिस पर आप आज सर्वे कर रहे हैं, हमारे जो रोड्स हैं ये आपके सामने हैं। यहाँ पर अंजुमन ताजरान पुल बरारा भी मौजूद है, वो भी एफ़र्ट्स कर रही हैं। स्ट्रीट लाइट्स के मसाइल हैं, दीगर मसाइल हैं, लेकिन इज्तमाही तौर पर अगर देखा जाए तो इंतज़ामिया दिलचस्पी नहीं ले रही। हालांकि उनका फ़र्ज़ बनता है कि जो डेवलपमेंट के हिसाब से फंडिंग है, जो रेशो है, अगर उसको पर सिटी भी अगर डिवाइड किया जाए तो जो हमारे इस रोड की जो पर रेशो बनती है डेवलपमेंट चार्जेस में, कम से कम वो हमें फ़िक्स करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं दिए जा रहे। हम अपने तौर पर तो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो, लेकिन जो एक अपनी बाहमी जो हमारा इज्तमाही एक गैदरिंग है या हमारा आपस में एक अमेरिकन सिस्टम है कि हम गेट टुगेदर इकट्ठा करके करते हैं, हम कहाँ तक कर सकते हैं। बेसिकली जो इनके फ़राइज़ हैं वो चाहे बजट में अलाउंस में करें, चाहे हमारे सिटी डिस्ट्रिक्ट का जो फ़ंड है उसमें से करें, या चाहे हमें ख़ुसूसी तौर पर दें, कम से कम जो हमारे ताजरों का एक राइट है वो यहाँ पर होना चाहिए। राइट के हवाले से जिस तरह से बात करें, मसाइल कितने दरपेश आ रहे हैं मौजूदा इन सूरत हाल में, जितने भी सोशल इशूज़ यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं, इस हवाले से कारोबार में कितने मसाइल दरपेश? देखें, अगर आप एक दुकानदार को, शॉपकीपर को अच्छा माहौल देते हैं, उसको विज़िट के लिए एक अच्छी प्लेस देते हैं, उसको गाड़ी पार्क करने के लिए एक अच्छी सुपीरियर जगह देते हैं, वो लामहला उस जगह को चूज़ करेगा। लेकिन अगर उसको मसाइल का सामना करना पड़ेगा, पार्किंग के लिए जगह नहीं है, माहौल ऐसा नहीं है कि हर तरफ गंदगी है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, वो मार्केट में कभी भी नहीं आएगा। वो हमेशा उन जगहों पर जाएगा जहाँ पर उसको ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी, उसको साफ़ सुथरा माहौल होगा, सड़क अच्छी होगी, माहौल अच्छा होगा। लेकिन हमारे इस रोड पर वो सहूलियत नहीं है, जिसकी वजह से हमारा जो कारोबारी रेशो है वो बहुत कम हो चुकी है। हमारी जो डेली जो इनकम है वो पर फ़र्द जो है वो बहुत कम हो गई है। और आपके सामने ये पोजीशन है, जो महंगाई की शरह है वो जून की दिन ब दिन जो है वो इजाफ़ा हो रहा है। तो हमारा जो गरीब मज़दूर है, जो गरीब तबका है, जो लोअर लेवल के लोग हैं, वो बेचारे पीछे जा रहे हैं। उनको कम से कम इस तरह रिलीफ देना चाहिए कि वो अपने घर का चूल्हा जला सकें और अपनी फैमिली जो है उसको अच्छे तरीके से जो है वो अपना गुजारा कर सकें। लेकिन देखा ये गया है कि जो हकीकत है कि रोड टूटे हुए हैं, सीवरेज का पानी सड़कों पर खड़ा हुआ है, पैदल बंदा गुजर नहीं सकता, जो फैमिलीज़ आती हैं उनको माहौल अच्छा नहीं है। इसकी वजह से लोग जब आएंगे नहीं, मार्केट में कारोबार ही नहीं होगा, वो कमाएंगे क्या और गवर्नमेंट को टैक्स क्या देंगे? बिल्कुल ऐसी है। अभी
देखते हैं हम टैक्स जितना भी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, क्या समझ रहे हैं कि जितना भी यहाँ पर मसाइल जो नज़र आ रहे हैं, जितना भी हम देखते हैं कि बिलों में इजाफा, चीज़ों में इजाफा, तो क्या आवाम के टैक्स का पैसा, ताजरों के टैक्स का पैसा उन पर लगता भी है? अगर हकीकत को अगर आप देखते हैं तो इसमें कोई सदाकत नहीं कि अवाम गवर्नमेंट जो दावे करती है कि जी हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं, आवाम के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई हकीकत नज़र नहीं आ रही। बल्कि हमने ये देखा है कि अशराफिया के लिए जो उनके अपने मेंबर्स हैं, उनके लिए आप देखें उन्होंने अपने बिल जो है वो मंजूर करा लिए हैं कि जी उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ, उनके लिए नई गाड़ियाँ जो हैं वो उन्होंने अवेल करा दी हैं। लेकिन एक आदमी जो बेचारा रोटी, कपड़ा और मकान और शाम को चूल्हे के लिए कोशिश कर रहा है, उसके लिए कोई एफर्ट नहीं हो रही। हालांकि होना ये चाहिए कि जो अशियाए खुर्द नूश हैं, जो डेली के इस्तेमाल में हैं, उनको कम किया जाए। बिजली जो है वो इसमें छोटी सी मैं बात ऐड करूँगा कि इन्होंने ये जो बिजली की जो तरसील की जो कंपनियों को जो लाइसेंस दिए हुए हैं, इन पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से रेट बढ़ाए हुए हैं। आप देखें जो एक बंदा 200 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है, अगर उसका एक यूनिट भी इजाफी हो गया, वो बिल 4 गुना बढ़ जाएगा। इसी तरीके से गैस के जो अखराजात हैं, आप उनको भी आप चेक करके देखें, उनका भी उन्होंने आज एक नया जो है वो कर दिया है कि जी हमारे इतने जो LBs हैं अगर इस्तेमाल करेंगे 90, तो उसका आपको ये फिक्स आएगा। अगर 91 करेंगे तो वो आपको 4 गुना बिल बढ़ कर आएगा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब इस सूरत हाल में जो ये जितने भी मसाइल आप यहाँ देख रहे हैं, मुतालबा क्या होगा इन मसाइल को लेकर? जिस तरह से कारोबार की शरह और हम देख रहे हैं प्रॉफिट रेशो भी कम होती चली जा रही, कागजात भी बहुत कम रुक कर रहे हैं, चोरी डकैतियाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ी, स्ट्रीट लाइट के मसाइल, ये जितने भी मसाइल हैं, तो इस हवाले से मुतालबा क्या करेंगे मौजूदा इंतजाम? देखें, ताजर कम्युनिटी की हम क्योंकि नुमाइंदगी करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम गवर्नमेंट से जितने भी रिलीफ़ करवा सकें, गवर्नमेंट से जितना हम फ़ंड अवेल कर सकें, आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए जो भी उनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो अप्रूव करवा सकें, तो हमारी तो यही कोशिश होती है। और हम उम्मीद भी रखते हैं गवर्नमेंट से कि देखें हम एक पुल का किरदार अदा कर रहे होते हैं गवर्नमेंट और ताजरों के दरमियान। तो हम गवर्नमेंट से ये तवक्को रखते हैं कि हमारा कोई ज़ाती उसमें मामला नहीं होता। हम अगर हमारी मार्केट में अगर 10,000 दुकानदार है, 15,000 दुकानदार है, तो हम उसकी नुमाइंदगी करते हुए उन 15,000 दुकानदार की आवाज़ बनकर बैठे होते हैं। तो हमारे जो मुतालबात होने उन पर हमदर्दी से गौर किया जाए और हम ये तवक्को रखते हैं कि हमारे जो मामलात होते हैं वो आवाम और ताजर की फ़लाह बहबूद के लिए होते हैं, तो उनको मंजूर किया जाए और जो मसावी जो फंडिंग है वो कम अज़ कम इतनी दी जाए कि हमारे मार्केट में जो बेसिक जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं, रोड है, स्ट्रीट लाइट है, इसके अलावा सीवरेज है, गैस प्रॉब्लम्स हैं, उनको हल किया जाए ताकि एक ताजर को एक अच्छा माहौल मिले, कारोबार का एक माहौल मिले, ताकि वो ईजी होकर अपना कारोबार बढ़ाए, ना कि बेचारा लॉस दर लॉस करके शाम को जनाब ताला लगा के घर जाकर बैठ जाए। अगर कारोबार अच्छा होगा, सहूलतें मुयसर होंगी, तो वो टैक्स देने के भी काबिल होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जब जो है यहाँ पर ताजरान को सहूलियात मिलेंगी और जो है उन्हें अकोमोडेट किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, तभी जो है वो टैक्स कलेक्शन या टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने में अपना भी किरदार अदा करेंगे। से आज यहाँ पर पुल बरारा मार्केट के मसाइल हमने आपको दिखाए। नेशनल ताजिर इत्तेहाद पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं शेख इम्तियाज़ अहमद साहब जो हैं मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ। इनसे मसाइल के हवाले से बात करते हैं और जानते हैं कि इस मौजूदा सूरत हाल में जहाँ हम महंगाई के एलिमेंट को देखते हैं, वहाँ पर ये सोशल इश्यूज़ जितने भी हैं ताजिरों को कितना अफेक्ट कर रहे हैं, और इसके साथ साथ आज जो है यहाँ पुल बरारा के बुनियादी मसाइल क्या हैं, कब से चल रहे हैं और आखिर क्यों हल नहीं किए जा रहे, तो इस तमाम सूरत हाल में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र ठीक है, अल्लाह का करम। ये बताइएगा कि मसाइल पुल बरारा मार्केट के कब से चल रहे हैं और इंतज़ामिया क्या कर रही है? सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का और आपके अदारे का शुक्रिया अदा करता हूँ कि गाए बगाए अवामी मसाइल को उजागर करते रहते हैं। और अगर आप सवाल पैदा अगर ये है कि बरारा रोड का मसाइल कब कितने अरसे से हैं, तो ये तकरीबन 2-3 साल से ये मसाइल चल रहे हैं। इसका मेजर इशू जो है वो सीवरेज है। इस वक्त रोड का भी इशू है, सीवरेज का भी इशू है, और ना तो यहाँ पे कोई पार्किंग का कोई इतना मसला है। और गाए बगाए वासा हुकाम को भी हमने रिक्वेस्ट की है कि इसका सीवरेज का मसला को हल करें। अब देखें
कि चौक पे आज भी पानी खड़ा होगा। जो एक मरकज़ है इस रोड का, वहाँ भी पानी खड़ा होगा। जब पानी खड़ा होगा, जो सीवरेज का बाहर पानी निकल रहा होगा, तो क्लाइंट या ग्राहक दुकान पे कैसे चलेगा जी। तो बाज़ का दुकानदारों का आपस में भी झगड़ा पैदा हो जाता है कि मेरा आपका पानी मेरी तरफ आ रहा है, सो क्योंकि ये छोटे छोटे मसाइल जो हैं वो कारोबार पे असर डाल रहे हैं और दुकानदार, छोटा दुकानदार खुसूसन बहुत टेंशन में आ जाता है। दुकानदारों के हवाले से बात करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी हमारे दुकानदार आजाद हैं सबसे ज़्यादा परेशान हैं तजावज़ात को लेकर। तो इस हवाले से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की यहाँ पर हम देखते हैं कि ख़ास कार्रवाई भी जो है उस हवाले से हमें नज़र नहीं आ रही। इदारों को इस हवाले से जो है क्या मुतहरिक करवाना चाहिए? ये कॉरपोरेशन की कार्रवाई गाय बगाय वो चलती रहती है यहाँ पे और बहुत सारे नाजायज़ भी कर जाते हैं। अगर एक दुकानदार ने अगर 1 फुट बाहर निकाला है और रात गए आने का क्या तुक बनता है यहाँ पे आने का जी। आप ड्यूटी टाइम पे आए करें, अगर वो जायज़ बैठा है हम पूरी उसकी सपोर्ट करेंगे कॉरपोरेशन की। अगर वो नाजायज़ नहीं बैठा, उसके साथ ज़्यादती होगी तो हम दुकानदार के साथ खड़े हैं। फिर रात को आने का पिछले दिनों में रात गए 8 साढ़े 8 बजे के करीब आए हुए थे, उस वक्त कौन सी तजावज़ात हो रही होती है? वही टाइम होता है लोगों का कुछ खाने पीने का या कुछ ख़रीदारी का, तो आके ये उद्यम मचा देते हैं, गिरफ्तारियां करने, दुकानें सील करने के भी नोटिस दे देते हैं बाज़ औक़ात। ये आवाम से दुकानदारों के साथ बहुत ज़्यादती है। अगर कोई दुकानदार तजावज़ात में शामिल है, वो कर रहा है, हम पूरा ताउन करते भी करना को चाहेंगे भी। ठीक है। और इस सूरत हाल में आपका जो हम यहाँ मसाइल देख रहे हैं तजावज़ात को लेकर, तो अभी इस सूरत हाल में जितने भी यहाँ पर सोशल इशूज़, सबसे बड़ा इशू है रोड का। रोड कब से टूट फूट का शिकार है और क्या समझते हैं कि अभी तक बन क्यों नहीं रहा? जब भी इलेक्शन होते होंगे या मौजूदा सियासतदान जो है यहाँ के हल्के के, उनने भी बहुत ज़्यादा वादे किए होंगे आपसे रोड बनाने के लिए, लेकिन अब तक रोड क्यों नहीं बन रहा? देखिए, ये तो रोड बनाने के 2 साल हो गए हैं इस रोड को तकरीबन तोड़ फोड़ हुआ जी। मैंने पहले आपको गुजारिश किया, सबसे बड़ा इशू इस वक्त सीवरेज का है। यहाँ पे सीवरेज बनाने नहीं डलनी चाहिए यहाँ पे। जिस वक्त तक सीवरेज नहीं डलती, रोड बने या ना बने वो बात की बात है। उसके बाद अगर सीवरेज डलने के बाद रोड बनता है, एक तो हुकूमती का पैसा भी सेफ होगा और वो कुछ अरसा सारा वो चलेगा भी। इस वक्त सीवरेज बुनियादी तौर पे ये मसला है इसका। मतलब सीवरेज जो मसला है, अभी तक सीवरेज पाइपलाइंस को भी जो है सही तरह से मतलब सीवरेज पाइपलाइंस के लिए बुनियादी तौर पर रोड को खोदा गया था, अभी तक सीवरेज पाइपलाइंस ही नहीं डाली। सीवरेज लाइन के लिए नहीं खोदा गया था, रोड को तोसी करने के लिए तोड़ फोड़ की गई थी, जो अब इस वक्त मेरी समझ में नहीं आता कि ये काम क्यों रोका गया है। तो फंडिंग नहीं है या जो मसाइल भी हैं जो तो हुकूमती अदारे बता सकते हैं, लेकिन हमारा जो मुतालबा है अजमत ताजरान के नेशनल ताजिर इत्तेहाद का, वो ये है कि सबसे पहले इस रोड को तोसी करने से पहले यहाँ सीवरेज नहीं डाली जाए। सीवरेज बिल्कुल ज़रूरी, और जितने हम देख रहे हैं यहाँ पर आबादी बढ़ती चली गई है। आखिरी सीवरेज मंसूबा यहाँ पर कब हुआ था? ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत पुराना मंसूबा हुआ था। मेरा ख्याल है कि 15-20 साल शायद हो गए 15-20 साल। और आबादी मुझे ये फ्लो जितना इस वक्त जो है हमें कोई खाली प्लॉट भी, चूँकि आबादी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, अब आबादी भी 100 गुना बढ़ चुकी है, उसका फ़्लो भी ज़्यादा है, उसका इस्तेमाल भी ज़्यादा है। जिस वक्त तक वो बार मैं ही आपको ये गुजारिश कर रहा हूँ, अक़वाम तक आपके थ्रू मैं आवाज़ यही पहुँचाना चाह रहा हूँ कि इस रोड पर पहले सीवरेज का हल निकाला जाए, सीवरेज लाइन नहीं डाली जाए, फिर उसके बाद रोड बनाया जाए। ठीक है। अभी कारोबार कितने फ़ीसद मुतासिर समझ रहे हैं इन मसाइल को लेकर? रात की जिस तरह से बात कर रहे थे, स्ट्रीट लाइट्स ना होने से रात को क्या क्या मसाइल? देखिए, रात को स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से और हुकाम का मुसलसल यहाँ पे गश्त ना होने की वजह से स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आए गए डकैतियाँ, गलियों में घुस के डकैतियाँ कर लिया, दुकानदारों को आके ताले तोड़ लेने रात को। तो इस सिस्टम पे कंट्रोल करना चाहिए। मैं पुलिस के आला हुकाम से मैं बड़े बहुदमाना गुजारिश करूँगा कि इस रोड पे पुलिस का गश्त बढ़ाया जाए। ठीक है। अभी जिस तरह पुलिस से भी आपने मुतालबा किया, सुथरा पंजाब प्रोग्राम जब शुरू हुआ तो वज़ीर आला मरीम नवाज़ का विज़न था कि सारी मार्केट साफ़ हो जाएँ, लेकिन पुल बरारा पे गंदगी के मसाइल वैसे ही नज़र आ रहे हैं। इदारों ने तो तकरीबन ओके की रिपोर्ट दे दी मुल्तान शहर की। क्या समझते हैं आप, क्योंकि सारी ताजरों के यहाँ से नुमाइंदगी करते हैं, मार्केट्स का भी आप विज़िट करते हैं, तो क्या समझते हैं कितने फ़ीसद वो जो हमारा सुथरा पंजाब प्रोग्राम था कामयाब रहा मुल्तान में? मुल्तान में तो खैर मैं अपनी रोड की कुछ इलाकों और की भी बात करूँगा, मुझे तो 5% नज़र आता है।
अदरवाइज़ कोई तवज्जो नहीं दी जाती जहाँ पे। कागज़ों पे तो ड्यूटी शायद लिख दी जाती होगी, अदरवाइज़ अगर सफाई सुथराई का देखा जाए तो मुझे तो 5% नज़र आता है टोटल। तो इस हवाले से आपका वज़ीर आला मरियम नवाज से क्या मुतालबा? मैं मोहतरमा से गुजारिश करूँगा कि ख़ास तौर पर मुल्तान की सतह पे जो इस शोबे के आला हुकाम को गुजारिश की जाए, कहा जाए कि इस पे ज़रा कड़ी नज़र रखी जाए और जो अमला है उस पे काम लिया जाए। कि जिस तरह से आज पुल बरारा मार्केट के हमने आपको मसाइल दिखाए, तो इन मसाइल में सबसे ज़्यादा बड़ा मसला जो था वो था रोड का। रोड टूट फूट का शिकार मेन चौक के ऊपर होने की वजह से जो है एक तो वहाँ पर ट्रैफिक फ़्लो को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना होता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, और साथ ही साथ जो है वहाँ पर जहाँ जितना मार्केट के अगर मेन रोड्स ही टूटे हुए होंगे, मेन चौक पर अगर यह सूरत हाल होगी तो गाहक हज़रात बहुत मुश्किल से उस मार्केट में आते हैं। तो कारोबार इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुतासिर है, और साथ ही साथ जो सीवरेज पाइप लाइन्स हैं जो आज से 15-20 साल पहले डाली गई थी वो अब जो है नाकारा हो चुकी हैं। नाकिस सीवरेज पाइपलाइंस होने की वजह से सीवरेज का निज़ाम भी पूरे इस इलाके में दरम भरम है, जिसकी वजह से आज जो है आए रोज़ हम देखते हैं कि वाटर ओवरफ्लो होने की वजह से रोड पर जमा हो जाता है, बदबू पूरी मार्केट में फैल रही होती है। उस हवाले से ताजिर हज़रात की सेहत भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है, कारोबार भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने शुरू किया, तो इस प्रोग्राम के तहत अगर हम बात करें तो कई मार्केट्स ऐसी हैं जो कि इससे मुस्तफ़ीद ना हो सकेंगी, और जितने भी हमारे ताजिर हज़रात हैं उनका यही मुतालबा होता है अवाम हमारे आला हुक्मरान से और इदारों से कि जो इनिशिएटिव आप उठाएं तो उसे पूरा लेकर चलें और मसाइल जो है अवाम के हल किए जाएँ। मज़ीद भी अवामी मसाइल जो है टीम आखिर को आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।